Hello friends, I welcome you in the third lecture of our biology lecture series. In last lecture we have studied about cell biology. अगर आपने lecture नहीं देखा है तो आप lecture देख सकते हैं. और in this lecture we'll be solving some MCQ based on this topic. Right? So let's start. See, if you know the answer, you can just comment on the. You can just type on the comment box. Otherwise just listen, right? So which organelle in the cell other than the nucleus contain DNA? So do you remember we have discussed we have two organelles which have their own DNA. First is chloroplast and second is mitochondria. So answer will be D, right? तो ये आप देख सकते हैं, ये UPSC IS के एग्जाम में पूछा गया है. Then second question, which of the following statement are correct regarding the general difference between plant cell and animal cell? We have discussed the differences between plant and animal cell, right? So read the option. First option, plant cell have cellulose cell wall while the animal cell does not. तो ये statement correct है ना? We have studied the plant cell have extra protective layer which we call it cell wall, which is absent in animal cells, right? So say first statement is correct. The plant cell do not have plasma membrane unlike the animal cell which do. ये गलत है statement क्योंकि both the plant and animal cell they have plasma membrane, right? The main difference is the animal plant cell have extra protective layer which is cell wall which is present outside the plasma membrane. Then mature plant cell has one large vacuole while the animal cell have many small vacuoles. So yes, it is correct. So the answer will be 1 and 3. So answer will be यहाँ पे ये सीक्वेंस गलत है बट आंसर विल बी बी, है ना? यहाँ से ऐसे देखोगे तो सी हो जाएगा आंसर. तो यहाँ अगर आपको नहीं पता है, इफ़ यू नो द ओनली सेकेंड स्टेटमेंट, ओके दिस इज इनकरेक्ट, यू कैन ईजिली एलिमिनेट एंड यू कैन मार्क योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल? देखो फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ आंसर क्या होगा, सेल वॉल. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. सो आंसर विल बी बी, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? तो आप देख रहे कि अगर किसी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे तो इस टाइप के क्वेश्चन ईजिली कर लेगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा. दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग PYQs हियर. तो एटलीस्ट यहाँ से तो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे ही, और आपको और भी MCQ प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? अब देखोगे ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है. तो हम किसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. वाई? बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ATP, है ना, विच इज़ एनर्जी करेंसी. So answer will be B. Next is the powerhouse of the cell. ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट होगा. ये ARO में भी रिपीट हुआ है. देन अगेन बहुत सारे एग्जाम BPSC 64 BPSC में पूछा गया है. देन फिर से एक दो बार और अब देखोगे ये क्वेश्चन आया है. नाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ और बिल्ड ऑफ, तो ये भी हमने डिस्कस किया था. बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स and protein. So both 1 and B will be correct. So answer will be D. ठीक है. Then next is which of the following cell organelle play the important role in protein synthesis? किसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? याद है आपको? राइबोसोम को. And ribosome which are attached on the endoplasmic reticulum. So both the endoplasmic reticulum and ribosome plays an important role in the synthesis of protein. So the answer will be B, राइट. सो ऐसे ही और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करके चले जाओगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, है ना. तो PYQs का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. ये रिपीट होते हैं एंड ऑल्सो गिव यू अ डायरेक्शन कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें किस डेप्थ तक किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है. So let's start with our new topic. So today we'll be starting with organ system. Organ system में हमने बताया था कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है. तो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विथ डाइजेस्टिव सिस्टम.
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के. इट इज़ अ सिस्टम, राइट. सो सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे and the organ combine and coordinate and make this system functional. So the digestive system of human being is starting from the mouth. It is start with the mouth and end with the anus, right? So in the mouth we have salivary glands, right? Because your digestive system is like group of organs and the accessory organs which help in the digestion. Like we have salivary glands which produce saliva, and that saliva have some enzyme which help in the digestion. Then we have teeth help in the grinding. Then we have tongue helps in the like mixing of the saliva with the food, right? Then we have esophagus, is a pipe which connect the mouth to the stomach, right? Then we have stomach, then we have accessory organs, pancreas, then we have liver, we have gallbladder or gallbladder, whatever you call it. Then we have a large intestine, we have small intestine. Then large intestine have different part, rectum, anus. Then we have one vestigious organ which is appendix, right? तो हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे ऑल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और व्हाट फंक्शन दे परफॉर्म एंड हाउ दे हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी आर टेकिंग फूड? वी आर टेकिंग फूड टू गेट एनर्जी. बट जैसा आपने खाया है वैसे वो जाएगा तो वहाँ से फूड रिलीज नहीं होगा. इट नीड्स टू ब्रेक डाउन टू गेट एनर्जी, राइट? क्योंकि जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने रोटी खाई है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज कॉल्ड ग्लूकोज. फिर ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी, एंड दैट एनर्जी विल बी यूज बाय डिफरेंट सेल टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट? तो ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द एनर्जी, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी. तो यही अल्टीमेट आपका एम है, टू ईट फूड. जो भी आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन क्यों खा रहे हो आप? टू गेट एनर्जी, है ना? टेस्ट तो अलग बात है, पर आपको अल्टीमेटली आपको एनर्जी चाहिए, बिकॉज योर ईच ऑफ योर सेल, यू हैव मिलियंस ऑफ सेल्स एंड ईच सेल्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस. So the food we eat undergo the different mechanical and the chemical processes which is called digestion. Mechanical का क्या मतलब हुआ? Just breakdown of the food. और आपने food खाया, वो teeth आपका क्या कर रहा है? उसको break down कर रहा है. तो that is called mechanical digestion. And breakdown करने के बाद to produce a smallest unit, that is if you are taking carbohydrate it will get break down into glucose. if you are taking protein तो वो amino acid बन जाएगा, है ना? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल डाइजेशन. ओके, तो our digestive system have many organs, they coordinate to perform the digestion process and give you energy, right? तो अपनी पार्ट में हमने अभी एक डायग्राम में देख लिया है कि दैट वी हैव माउथ, वी हैव एसोफेगस, वी हैव स्टमक. तो उसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो माउथ का क्या फंक्शन है? इट हेल्प इन द इंजेशन ऑफ द फूड और इनटेक ऑफ द फूड. इनटेक ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन, राइट? और माउथ को सिर्फ माउथ नहीं, आप इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं. हम इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, इसको कैविटी बोलते हैं. तो कहीं अगर बक्कल कैविटी आ जाएगा तो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज़ योर माउथ ओनली, है ना? Then in the mouth we have different organ which help in the digestion process. We have teeth, we have already discussed this. We have teeth, we have salivary gland which secreted saliva which have digestive enzymes, right? Then we have tongue. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. टीथ का काम क्या है? ग्राइंडिंग करना. आप जो खा रहे हो वो ग्राइंड करने को हेल्प करता है ना? एंड ऑल्सो हेल्प इन दी moisturization of a food with the help of saliva. And saliva, we have salivary gland in the mouth which secretes saliva, and this saliva have an enzyme called amylase. ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आता है ना?
तो बिकॉज द सलाइवा हैव amylase, so the digestion of starch or carbohydrate starts in your mouth itself. तो ये भी क्वेश्चन आता है कि digestion of starch starts with which part of your digestive system? It start in the mouth itself. तो ये याद रखिएगा. देन टंग का थोड़ा पढ़ लेते हैं. टंग में एक्चुअली बेसिकली हमारे टेस्ट डिफरेंट टाइप के टेस्ट को आप सेंस कर सकते हैं, और ये हेल्प करता है to mix the food with the saliva also. So in the tongue we have different taste, like we can taste the sweet, sour, salty, bitter taste can be sensed in the all part of the tongue. But the back of your tongue जो है अब देखोगे are very sensitive for the bitter taste. मैं इसलिए इतना एम्फोसिस देती हूँ, मतलब कोई चीज़ को इतना डिटेल में अगर बता रही हूँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे. तो जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू इन द रिविजन, राइट. सो माउथ का हमने पढ़ लिया, हम इसको बक्कल कैविटी भी बोलते हैं. देन इन द माउथ वी हैव टीथ, वी हैव सैलिवरी ग्लैंड, वी हैव टंग. देन द फंक्शन पढ़ लिया हमने. टीथ का फंक्शन क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है. इन द सलाइवा वी हैव एमाइलेज विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च. देन वी हैव टंग. टंग का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि कौन से पार्ट को क्या सेंस अप कर सकते हैं. देन वी हैव फेरिंग्स. फेरिंग्स इज बेसिकली अ वाई शेप ट्यूब, राइट. इट इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द माउथ एंड इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द पैसेज ऑफ क्रस्ट फूड. जो हम लोगों ने क्रस्ट तैयार किया है ना माउथ में, फ्रॉम द माउथ टू द एसोफेगस. वो एसोफेगस में बस डिलीवर करने का काम रहता है उसका, राइट. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम, राइट. देन वी हैव एसोफेगस. एसोफेगस इज बेसिकली अ मस्क्यूलर ट्यूब that connect the pharynx, which is a part of upper section of your gastrointestinal tract, and it is supplied the solid food along its length and it deliver it into your stomach. तो डिलीवरी का काम है, एक पैसेज है you can say. Then we have stomach. Stomach क्या है? Stomach is basically a muscular bag that is situated on the left side of your abdominal cavity, not in the right. Left side of your abdominal cavity beneath your diaphragm. Diaphragm आपको पता होगा, right. lungs के नीचे का supporting bones होते हैं. तो just beneath the diaphragm what is present, your stomach is present. So it is a vital organ that act as the storage for food and provide enough time for digestion of the meal. Churning of the food वहाँ पे होती है. It help in the churning of the food with the mucus. Mucus is present in your stomach. Then also it secrete secretion. We have one is propepsin, right. They secrete propepsin and HCl, hydrochloric acid, because the hydrochloric help to develop to convert the propepsin into pepsin, and this pepsin will help in the digestion of protein, right. तो एसिडिक कंडीशन होना भी इम्पॉर्टेंट है. अगर एसिडिक कंडीशन नहीं होगा तो योर प्रोपेप्सिन विल नॉट गेट कन्वर्ट इनटू द पेप्सिन एंड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल स्टॉप, राइट. सो इन द स्टमक द कंडीशन इज, कैसा होता है कंडीशन, इट्स एसिडिक, राइट. द नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर स्टमक what is the part of your intestine? It is the small intestine. So small intestine is the thin long tube about 10 feet long. 10 feet long का long एक पार्ट है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, राइट. इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक एंड एक्वायर अ मैक्सिमम एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. अब 10 फीट आप सोच सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है. द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ 3 पार्ट. अगर आप देखोगे डिटेल में पढ़ोगे, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं. पहले पार्ट को फर्स्ट अपर पार्ट होता है, उसको हम लोग डिओडेनम बोलते हैं. देन वी हैव जिजनम एंड देन वी हैव इलियम, राइट. सो दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द योर स्मॉल इंटेस्टाइन. हर पार्ट का भी अलग अलग फंक्शन है. तो डिओडेनम रिसीव द एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज. पेनक्रियाज हमने देखा था डायग्राम में, राइट. इट सिक्रीट अ एंजाइम which is received by duodenum and the bile from the liver and the gallbladder. तो ये कहाँ पे
रिलीज होता है आपका एंजाइम फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड द लीवर सिक्रीशन इज गेट इनटू योर डिओडेनम. अब थोड़ा सा पैनक्रियाज के यहाँ पे मेंशन है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है. पैनक्रियाज बेसिकली रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन. राइट, देखो आपका रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, माउथ से, लेकिन इसका डाइजेशन कंप्लीशन कहाँ पे होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा. राइट, डाइजेशन ऑफ एवरीथिंग लाइक प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, एवरीथिंग विल बी एंड इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ. राइट, तो पैनक्रियाज रिलीजेस द एंजाइम विच हेल्प इन द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. और कौन कौन से एंजाइम आप रिलीज करते हैं ये आपको याद रखना है. इट रिलीजेस 3 एंजाइम. फर्स्ट इज एमाइलेज, देन प्रोटीएज एंड थर्ड इज लाइपेज. कहाँ पे सिक्रीट कर रहा है, डिओडेनम में. ये भी याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे, विच पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम में, जेजेनम में और इलियम में. और ये आपको सीक्वेंस भी याद रखनी है ना, ऊपर से नीचे. अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओगे तो पहले डिओडेनम आएगा, जेजेनम आएगा, देन इलियम आएगा. DJI करके कर सकते हो, याद कर सकते हो, DJI, है ना. देन दिस एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, अभी अमाइलेज के बारे में हमने पढ़ा था, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, शुगर, सब एक ही है ना, कार्बोहाइड्रेट. देन प्रोटीएज, प्रोटीन का तो आपको समझ आ रहा है, प्रोटीएज विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. देन योर लाइपेज विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट. तो ये भी मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट, विच एंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो अगर प्रोटीन के मैच में अगर लगा है एमाइलेज तो डैट विल बी रॉन्ग, है ना. क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्रोटीएज होना चाहिए. तो आपको ये पता होना चाहिए. देन थोड़ा सा लीवर के बारे में पढ़ लेते हैं. लीवर जो है क्या है, ये एक एसेसरी ऑर्गन है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इज लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द स्टमक. क्या है फंक्शन, इट प्रोड्यूसेस बाइल. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. देखो, बाइल जूस होता है विच इज सिक्रेटेड बाय लीवर बट इट गेट स्टोर इन गॉल ब्लैडर. तो ये डिफरेंस आपको समझना है कि प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर, गॉल ब्लैडर नहीं करता है प्रोड्यूस उसको. जैसे स्टोरेज का काम होता है गॉल ब्लैडर में, and it gets secreted by the gallbladder but manufacturing takes place in liver. Right, तो बाइल क्या करता है, हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फैट के डाइजेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स. सो बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्मॉल फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. देन लीवर ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया. अगर आपने देखा होगा किसी का लीवर खराब है तो यूरिया या तो कम ज़्यादा हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है. इट ऑल्सो हेल्प इन द कोलेस्ट्रॉल, देन द सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, देन ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. जो भी आप डाइजेशन हो गया, योर कार्बोहाइड्रेट गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. अब वो ग्लूकोज का स्टोरेज का काम किसका होता है, लीवर का होता है. सो वेन एवर you require you can just use this store glucose from the liver. Right, then the gall bladder में क्या होता है, आपका बाइल स्टोर होता है और उसका रिसाइकलिंग होती रहती है गॉल ब्लैडर में. सबका फंक्शन you should know. Therefore complete digestion of the food occur in the small intestine. हमने अभी आपको एक्सप्लेन करा था. Starting of digestion in the mouth, the completion taking place in the small intestine. The digested food is then get absorbed. अब हमने डाइजेशन कर दिया, सबको ब्रेक डाउन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया. योर शुगर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर. देन प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है ना. फैट आपके स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं. अब क्या नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, टू गेट एब्जॉर्ब्ड. एब्जॉर्प्शन होगा, देन ओनली यू कैन यूटिलाइज इट for the production of energy. Right, so the absorption begin in the small intestine itself. complete digestion के बाद absorption शुरू होता है. this process begin in the small intestine where the most of the nutrient and minerals are absorbed. so maximum जो absorption होता है वो small intestine में ही हो जाता है, and the remaining some of then it takes place in large intestine.
लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इट इज़ द थिक लॉन्ग ट्यूब मेजरिंग अराउंड 5 फीट इन द लेंथ. अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या पढ़ा था? 10 फीट लॉन्ग होता है. एंड योर लार्ज इंटेस्टाइन इज उल्टा है, नाम उसका स्मॉल है पर इट इज़ लार्ज, एंड इसका नाम लार्ज है बट इट इज़ स्मॉल इन द लेंथ, right? It is present just beneath the stomach and wrap over the superior and lateral edge of the small intestine. It absorbed water and consists of bacteria that support the breakdown of the waste to the small nutrient. तो ये फंक्शन है इसका. वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आपको पूछा जाएगा तो इट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. इसके भी 3 पार्ट होते हैं. अभी हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट पढ़े थे. यहाँ पे भी होता है. फर्स्ट इज सिकम, सेकेंड इज कोलॉन एंड थर्ड इज रेक्टम, राइट. सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन कोलॉन, ये याद रखिएगा, कोलॉन में होता है. एंड द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटीरियल ऑल्सो नोन एज फीसिस इज स्टोर टेम्पररी इन दी रेक्टम. रेक्टम में वो स्टोर होता है एंड इट देन रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी फ्रॉम द एनस. And the process is known as ingestion. Ingestion, in हमने क्या पढ़ा था? The taking of the food is called ingestion, and taking out the undigested food is called egestion. E और N का difference है. Then we have also a vestigious organ which is appendix. So appendix is just a blind-ended tube which is connected to the cecum. Cecum is a part of large intestine, right? So with this we have completed our topic digestive system. इसको रिवाइज करिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. डोंट इग्नोर दिस, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, है ना. और बाकी इतना जितना भी अभी 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तीनों को आप अच्छे से रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए.